Assalamu alaikum. Good morning to all the students. How are you girls? We hope that you all are fine. Today we are going to start chapter number 1, and in the yesterday class we are starting about the syllabus, and day before yesterday we were discussing about the course outline and the previous lectures of first year. Right now today we are starting chapter number 1. Chapter number 1, homeostasis, right? The important aspects of homeostasis are excretion, osmoregulation, thermoregulation. Now today we have to focus on the topic excretion. Excretion is very important topic in the plants. So today we are discussing about the excretion, right? Our topic is excretion. ठीक है, excretion plant में क्या होता है? Because we all know about the excretion in the animals. So what will happen? Plants, they do not excrete the water, they do not excrete the excretory products. Only the living organism or the animals can excrete? No, plants also excrete. Now the thing is that प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होती है, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट. Excretion, the removal of harmful substances and which are produced as a byproduct during the metabolic process in plant body. Now these harmful substances have to remove from the body of plant. That is called excretion. Excretion in plant, rate of the catabolic process is very slow and waste products are produced in less amount. They are used again in their anabolic process, right? During the process of the catabolic activities, some extra waste material are also produced. They have to remove from the body of the plant, right? Excretion in plants, waste substances of the plant. Normally water, right? हमें पता है excretion plants में क्या होगी, water remove होगा. But here are some other substances which are produced in excess amount are water, carbon dioxide and oxygen, ions, excretion of nitrogenous waste, right? Removal of water. Water is produced during the cellular respiration and some part of it is used in the photosynthesis during time. But plant also absorb large amount of water from the soil. So the water which come in the plant body in the excess amount during the their metabolic activities, in the resultant of the excretion, what will happen with this water? This extra water is removed from the body of plant by two methods, ट्रांसपेरेशन एंड गटेशन. ट्रांसपेरेशन आप सबको पता है कि आप लोग पढ़ भी चुके हैं बार बार. व्हाट इज ट्रांसपेरेशन एंड गटेशन इज आल्सो द एक्सक्रीटरी प्रोसेस जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट की बॉडी से रिमूव होता है, राइट? Transpiration, the extra amount of water removed in the form of vapors through stomata is called transpiration. Stomata are open in the epidermis of the leaves surrounded by the guard cells. Transpiration takes place during the daytime in the form of water vapors.
Second process is the guttation. When water is removed from the plant in the form of the droplets, this process is called guttation. Guttation occurs a special opening called the hydathodes. ये आपको याद रखना है, hydathodes की वजह से गटेशन होती है। और किस टाइम होती है? ड्यूरिंग द नाइट टाइम। एंड दीज जो स्मॉल ओपनिंग्स विच आर hydathodes, they are present at the edge of leaf. Guttation takes place in those plants which grow in the tropical rainforest. Right? Guttation के लिए आपको 4 important बातें याद रखनी है. Water removed in the form of the droplets. Guttation takes place through the hydathodes. Hydathodes are present at the edge of the leaves. Right? And guttation takes place in the tropical rainforest. अक्सर आप लोगों ने सुना होगा dew drops on the leaves at the edge of the leaves. जो ड्रॉपलेट हमें नजर आते हैं इन द अर्ली मॉर्निंग, वो कौन सा प्रोसेस होता है? उसको अक्सर हम कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स है, शबनम के कहते हैं. एक्चुअली दीज ड्रॉप्स आर रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर by the process of guttation. Right? Excretion, हमने excretion of water स्टडी कर लिया है. रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सक्रीशन प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी होता है. इन द डे टाइम प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन. राइट? तो एक्सक्रीशन ड्यूरिंग द डे टाइम किस चीज की होगी? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, विच इज बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमंस एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. राइट? इन द नाइट टाइम प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेल ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन. These gases are released through the stomata. Right? स्टोमेटा के जरिए ये रिलीज होता है. डे टाइमिंग में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है, इसलिए वो खुद ही अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेता है. लेकिन रात के वक्त क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो फिर प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है प्लस ऑक्सीजन को इनहेल करता है, क्योंकि रात के वक्त वो अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है. जबकि दिन के वक्त भी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, लेकिन क्योंकि फोटोसिंथेसिस के जरिए एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही होती है, तो उसकी सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही होती है और एज अ बाय प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है वो उसको इवॉल्व करता रहता है. ठीक है? और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए रिलीज होती है वो उसको अपने लिए रिएक्टेंट के तौर पर फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज कर लेता है. तो दिन के वक्त ऑक्सीजन हमारे लिए अवेलेबल होती है, लेकिन रात के वक्त बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती है. राइट? तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं कि दिन के वक्त प्लांट के करीब जाओ तो ऑक्सीजन मिलती है, रात के वक्त नहीं जाना चाहिए क्योंकि जिन भूत वगैरह होते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं होता. एक्चुअली प्रोसेस क्या हो रहा होता है कि रात के वक्त प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं. हम जैसे प्लांट के करीब जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर लेते हैं? अपनी बॉडी में इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से होती है सफोकेशन. और उस सफोकेशन के रिजल्टेंट में क्या होता है कि हमें फौरन से सफोकेशन के रिजल्टेंट में हमारा सांस घुटता है, दम घुटता है और फौरन से वशीदारी हो जाती है और हम समझते हैं पता नहीं क्या हो. Third है excretion of iron. The iron produced in the plants are mostly organic and they are deposited in the dead tissues of the plants, which are called the heartwood. This is harmless for the plant. Right? The excess amount of iron is also deposited into the dead cell of the plant body, such as bark. आपने देखा होगा प्लांट के जो आउटरमोस्ट सरफेस होती है दैट इज वेरी रफ होती है
उसको टच हम अगर करते हैं तो कितना बिल्कुल ये मोटे मोटे जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं और उनके जो ट्री ट्रंक्स होते हैं वो अनइवन सरफेस होती है, तो उसको हम बार्क कहते हैं। वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द आइंस, राइट। और हार्डवुड में क्या होता है? हार्मलेस सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं, ठीक है। Excretion of nitrogenous waste. Different types of organic waste products are produced in plants, which are deposited in the leaves. Such leaves turns yellow due to the pigment compound, and during the autumn seasons, plants shed off such leaves in order to excrete deposited nitrogenous waste. These leaves are called excretophore. आप लोगों ने याद रखना है। अक्सर हम कहते हैं ना कि ऑटम के सीजन में पत्तियां पीली हो जाती हैं और वो गिरना शुरू हो जाती हैं। वो किस वजह से गिरती हैं? बिकॉज पूरा साल उनके अंदर जितना भी ग्रीन पिगमेंट होता है वो टर्न्स होता है इनटू द येलोइश पिगमेंट, और जो येलोइश पिगमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? वो बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। और वो लीव्स क्या कहलाती हैं? दीज लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर, राइट। Important points for excretion. Number 1, you have to keep in this your mind that excretion is the metabolic activity, right? Excretion कौन सा प्रोसेस होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस भी होता है और एनाबॉलिक प्रोसेस भी होता है। इट्स मीन हमारी बॉडी में इस तरीके से हम फूड मटेरियल लेते हैं और फिर वो ब्रेक डाउन होता है, उसके रिजल्टेंट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं। सेम ऐसे ही प्लांट में भी कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। जो उनकी फूड मटेरियल बनता है वो ब्रेक डाउन होता है, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं प्लांट से, ठीक है। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट एक्सक्रीशन कौन सा प्रोसेस है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के जरिए जो सब्सटेंसेस रिमूव होते हैं वो एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। रिमूविंग एक्सेस मटेरियल ऑफ द बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक प्रोसेस। एक्सेस अमाउंट में जो मटेरियल प्लांट की बॉडी में जमा हो जाते हैं वो रिमूव होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज देयर इज नो एनी अंडरग्राउंड एंड द ओवरहेड टैंक इन द प्लांट बॉडी। तो एक्सेस अमाउंट कहाँ पे जमा होगा? ऐसे तो कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या करना है? हैव टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट। नंबर 3, मेंटेनिंग एंड रेगुलेटिंग प्लांट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, राइट। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में अगर प्लांट ने ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो उसको भी एक्सेस करना है। ज़्यादा ऑक्सीजन आ गई है तो उसको भी रिमूव करना है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये तमाम अमाउंट प्लांट की बॉडी से लाजमी रिमूव होनी है, ताकि प्लांट ने अपने इंटरनल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, ताकि उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन एक रेगुलेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू रन करता रहे, ठीक है। अब इस सारे एक्सप्रेशन के रिजल्टेंट में हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि प्लांट का गोल क्या है। प्लांट हैव टू अचीव द गोल टू स्टे सेम, राइट। उसने प्लांट ने क्या करना है? गोल टू अचीव होमियोस्टेसिस इन द प्लांट, ताकि प्लांट अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक स्टे सेम रह सके, स्टडी प्लांट रह सके, अपने फंक्शंस को अच्छे से वो कंट्रोल कर सके। सो दीज 4 आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स and you have to keep this thing in point that excision is not only the removal of the excess amount of water and other substances. The goal of excretion is to achieve the homeostasis in the plant. प्लांट ने अपने तमाम मैकेनिज्म को स्टे सेम रखना जरूरी है, ये एक्सक्रीशन का गोल है, राइट। थैंक यू सो मच गर्ल्स फॉर लिसनिंग मी and hope this thing that you all are understand the today's lecture. Is there any query, any question you must have to ask from me? Thank you for listening me.
Thank you, girls, and best of luck.